शुरू करें। So, namaskar everyone. Respected Principal Sir, Dr. Ajay Kumar Garg ji, respected Madam Madhu Sharma ji, Vice Principal, Dr. Mohammad Ishaq ji, Coordinator IQAC, Madam Ranjana Sharma ji, Dr. Rameshwar Das, Dr. Sunit Sharma ji, Dr. Arpana Garg, Madam Kanak Sharma, Professor Pawan ji, and all dear colleagues present here as well as present online for this program, and my dear students. Good morning to everyone, and it is my proud privilege to be in this program. We will be listening to a very motivational speaker as well as a learned personality from the University of Rani Durgavati Vishwavidyalaya, yani Rani Durgavati University, Jabalpur, Madhya Pradesh. Before going to that, I would like to have a very brief introduction about the program. The introduction about the speaker I'll give later on. I hope I am audible, sir. Yes, it's very clear. Okay, thank you. So for all the delegates, I think we are all aware of some words like patents, copyrights, trademark designs, databases, trade secrets, industrial design rights, plant variety rights, geographical indicators, etc. These are some words which most of us may have heard, but we do not know much about these things. And I personally believe that, like any other wealth of this world, intellect is also a treasure. But it strikingly differs from the world wealth because the beneficiaries of the intellectual property are a large number of people or organizations instead of individuals. When users take financial, personal, or academic advantage of these benefits, the creator or the inventors must have some privilege, right, or benefits. So this probably brought the idea of IPR. I'm not aware of much about it. I leave it to our speaker to apprise us of various aspects of intellectual property rights. Yet to be very brief, the primary purpose of intellectual property rights is to stimulate creativity by providing an exclusive right to creative inventions and works. These protection rights inspire artists, authors, or inventors to share their work for the benefit of society. To formally start the program, I request our worthy principal, Dr. Ajay Kumar Garg ji, to come on stage and inaugurate today's FDP through his inspiring words. Principal sir, please. Good morning to one and all present in today's webinar on intellectual property. I welcome Professor S.S. Sandhuji, Director, Biodesign Informative Center, Jabalpur University, Madhya Pradesh. I also welcome all the conveners of this webinar, Professor Ranjana Sharma ji, Dr. Mohammad Ishaq ji, convener IQAC, Dr. Nidhan Singh, the main force behind this webinar, Dr. Arpana, and all the faculty members of science for taking this initiative on a very relevant topic. And I'm sure this webinar will be very useful for all the people who have joined in this program today. It will be very useful for all the academic persons, and definitely we all will be benefited.
And before not taking much time, I again welcome one and all present in today's webinar, and I hand over the mic to Professor Nidhan Singh. Thank you. Thank you very much, sir. With your permission, I now take this opportunity to formally start this program by introducing our speaker of the day. I am very pleased to read brief biodata of Professor Sardul Singh Sandhu, who is presently Director Bio Innovation Design Center at Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, Madhya Pradesh. And I was lucky enough to hear him twice during one of my refresher programs there in the University of that prestigious University of Jabalpur. Professor Sardul Singh Sandhu, DSc, is a motivational and biotechnology speaker, and he has his work. I believe very brief to sum up the work of Professor Sandhu. He has been former governor's nominee of University Sirsa, CDLU Sirsa, ex-executive council member of Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, Haryana, ex-director general, University, Ambala, ex-director, CSRD, People's Group, Bhopal, and presently director, as I have told earlier, Design Innovation Center and professor in Department of Biological Sciences at RD University, Jabalpur. He has published more than 166 research papers with a high impact factor of more than 90 and citation of more than 2,200, H-index 22 and I-10 index of 45. He has also published 2 books and 6 journal articles in national and international journals of repute, and he has also filed 4 Indian patents. During his career, he has completed 10 research projects from UGC, Madhya Pradesh, CST, CSIR, DBT, and Department of Science and Technology. Professor Sandhu was honored by IBS with Professor Y.S. Murthy Young Scientist Gold Medal Award in 2000. Recently, he was honored by Bharat Excellency Award by FFI, and the award was presented by Dr. GVG Krishnamurthy, former Election Commissioner of India in Delhi. He was awarded with Doctor of Science in 1999 for his excellent research work in biotechnology. Also awarded National Biotechnology Associateship in 1995 and postdoctoral overseas visiting professorship for visiting Australia by UNESCO for visiting Australia. Vishisht Seva Padak, and there are so many medals. He has also visited Italy, Brazil for more than one occasion, and different universities and institutes. Also visited Brazil and honored with Excellence Award by Honorable Vice Chancellor of RD University, Jabalpur. He has guided more than 60 students for MPhil and MSc and over 25 for PhD. Professor Sandhu worked as visiting professor and scientist at Monash University, Australia, IAC Brazil, FMRP University of Sao Paulo, Brazil, St. Andrews Fife University, Scotland. He is a member of many leading associations and societies and founder secretary of Shri Guru Har Gobind Society for Rural Biotechnology Management. The list of his achievements is very long, so I will cut it short by welcoming Professor Sandhu in this lecture. He has also delivered a large number of popular talks on biotechnology as well as on how to be successful in life, power of your unconscious mind, how to do research. So he has been keynote speaker for many of the seminars, conferences in India as well as abroad. We are very, very happy to be with you today. Thank you very much for accepting our request and sparing your valuable time for us. So now with these words, I know I have made so many mistakes reading the biodata. With these words, I hand over the proceedings to Professor Sandhu with a request to deliver his talk. And I am sure this talk will be very informative and interesting for all of us here. Thank you very much.
Thank you very much, Nidhan Singh ji. Dr. Nidhan Singh ji, thank you very much for elaborating my CV in a very humble manner. I am nothing. I'm very small creature. I'm just like you all professors. These all things are customary to read. That's why you have, I think, gone through this biodata. But I am just a small creature. वो कहते हैं ना, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, मोसो गरीब करोड़ पड़े. तो बाबा जी की मेहर है, जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा की मेहर से हो रहा है. So at the outset, I'm thankful to the principal, Dr. Ajay Kumar Garg of IB College at Panipat for organizing such a nice program for this intellectual property right. And I'm thankful to Vice Principal Madhu Sharma also. She is present today in the webinar. The conveners had taken a lot of pain. Dr. Nidhan Singh ji, Mrs. Ranjana Sharma ji, Mohammad Ishaq Sahab, Aparna Garg madam, and co-secretary and organizing secretaries, Pawan Kumar ji, Sonia madam, Vikram ji, or Kanak Sharma madam. Thank you very much for organizing such a nice program. I hope I shall try my level best to give whatever I have got with me for the patents and the intellectual property rights so till date. Before starting, I would like to share my screen first, and then we can start the lecture. Nidhan Singh ji, I am permitted to share the screen. Yes. Anji. Is my presentation visible? Yes, sir. Yes, it is now visible. Thank you very much. Just inform me if the slides are not moving. I shall keep them moving. So, you can, sir, please, you can click on this hide button. No problem. It will just hide this message. Stop sharing and hide. Stop sharing and hide. Oh, yes, okay. Yes. I have done it. Thank you. So the topic I want to deal today is patentability and copyright of research in India, with special reference to biotechnology and current scenario. Actually, I am a biotechnologist, so I will be concentrating some of the examples from biotechnology. Otherwise, this lecture is open to all the subjects and all even the commerce and the arts peoples also. They can also listen this subject. Since I am biotechnologist, so I would like to give some examples which are related to biotechnology. So before starting my lecture, I would like to give my current affiliation. I am Director of Design Innovation Center, that is with special emphasis on the biodesigning. And this is a very big mega project. You will surprise to know that India government of Ministry of Education, ME now, earlier it was MHRD, now it is ME. So Ministry of Education has started, MHRD has started a very big mega project all over India. That was the Design Innovation Centers. Earlier, this Design Innovation Centers were given to only IITs, NITs, and very high rated university. Like most of the IITs, like 9 of the IITs were having it, and then some NITs were having it, and then some good universities like Banaras Hindu University, Chandigarh University, they were having it. And finally, they decided to have elaborate it, and then they covered the area of Madhya Pradesh and Rajasthan also, and Maharashtra also. So in whole Madhya Pradesh, only my department, that is the Department of Biological Sciences of Rani Durgavati University, got this project. And one from Rajasthan University, and one for Pune University, and one from BHU. This is how 21 DICs are working all over the country. And this project was estimated about 10 crore in each. Each DIC was given 10 crore in a limit of the 10 crore. And then after 6 years, that this limit of the 10 crore has been removed. Now we can have the more money from MHRD.
So it's a wonderful scheme which MHRD is giving. And I'm very proudly I'm mentioning that Jabalpur in Madhya Pradesh, this is the only center. We have got one IIT, we have got one IIIT also, but the project was given to Department of Biological Sciences, being I am the director of this center. So I had distributed the money to 3 more satellite which I have chosen. One was IIIT-DM, other was Biotechnology Center of Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, and third one the Central Aloysius College of Science and Technology Institute. So this is how about 1 crore rupees to all these 3 spoke has been given. So this is the hub and spoke model only because of the attractions for the patent to these peoples, area of the peoples, intellectual properties of the area of the peoples is to be attracted by this project, and we have to file so many patents out of this. So coming to my topic, that is the intellectual property. What is intellectual property? As Nidan Singh Saab was elaborating in the introduction very nicely, I was listening and he was very politely was elaborating the intellectual property right. That's what is needed for the student. So similarly, intellectual property right is the IP. It means it refers to the creation of mind, literary, and a work of the art, symbol, name, sign used in the commerce. Anything which you want to use in commerce, out of your brain, anything you want to use into the commerce comes under the intellectual property. So what kind of property you should have, what kind of property your college name will be flourish, what kind of the property your city name will be flourished, and what kind of the intellectual property whole India and whole world will be flourishing by patenting it. So intellectual property rights refer to the creation of the mind. Anything you create from the bottom of your mind, so that comes under intellectual property. Maybe literary work, maybe art, maybe symbol, name, sign used in the commerce. It is like any other property and right. Like I have got a car. It is my car. So I can say it is my vehicle, and I have the registrations of this vehicle. This is the number of my registration number of my vehicle. So it belongs to me. So that is my property. Vehicle is my property. The land is my property, which I have earned. I have hard worked and I have earned. I have registered the property on my name. So it is like any other property. You must register your intellectual property. If you are not registering, somebody else will register your property. So it is very good that whatever work you do in your dissertation, in your post-graduation, in your PhD, you have the right on that. That's why you must register the property, and that is the intellectual property of a person. Because this allow creators or owner of patents, trademark, or copyright work to benefit from their own work or investment in the creation. Like whatever you are hardworking to earn the money, and then you are buying a land, and then you are registering. The similar way, you are working hard with your brain and bringing so many new novelty idea, good idea. It is tricky. I will tell you how it is a tricky. So tricky idea, and you are doing some innovation, and this innovations comes first in your mind. That is your property, and then out of that property you can make money in the future for your property, for your generations, for your kids, for your country. So this allows the creator or owner of patents or the trademark or copyright work to be benefited from their own work or whatever investment they have done in this creation. Now coming to further rights, that is the intellectual property right. After intellectual property, you have been given some rights. Now what are those rights? I will be discussing into this particular lecture today. Intellectual property is a legal term for creation of the mind. Whatever you are creating by the mind, and that in the law language, the language of the law, it is known as intellectual property in the legal term, intellectual property. Now IP, that's why, because you have got everybody has got the intellectual property. So IPR law provides exclusive use of creations of the mind to a person who has created it. So that's why this law has been created, so that whatever you are developing from your brain, you are getting the use of that.
It includes trademark, copyright, patent, and industrial design. So we shall discuss a little bit of everything today. What is the trademark? What is the copyright? And then how can you patent our innovation? And what are the industrial design? Okay? So ये चारों चीजें we are going to discuss. For example, invention, words, phrases, symbol, design, music, literature, other artistic work, all that comes under your intellectual property, whatever is created by your mind. Okay, but they have got a separate clause. Where stand the music, where stand the literature, where stand the artistic work, where stand the symbols, where stand the music also, where stand your invention, where stand your experimentation work, and out of experimentation you got the success, and that success to be patented if it is applicable for the industrialization. So this is how all these things are separated. I will tell you one by one. So the whole intellectually, in this slide, I would like to emphasize on the intellectual property right. Number one is the industrial design. So the shape of the bottle, like this is the bottle I am having, and then it's a beautiful bottle, and its shape is designed by someone. So this is the industrial design. Somebody had designed this bottle so that it favors me, and then somebody has made this logo also. Here is the H2O written what is this? Cello company and H2O. This is a trademark. Cello company has given the trademark. The shape of this bottle is coming under the industrial design. The two things are clear. The trademarks are there, and then the industrial designs are there. Trademarks means business names are there, slogans are there, labels are there, packaging material and numerals are there. These all things comes under the trademark. So here in the industrial design and your trademark, your college can do lot of good work, and you can do lot of patenting of the trademark, registration of the trademark and industrial design for benefit of the NEC. If you want to come with the A grade and the A++ grade, and you must go for the industrial design competition in your student, and whosoever the design is very good, they should, whatever industries are nearby, you should invite them, and their product should be designed by your students, and they can take it, and your college will be benefited, as well as they will be benefited with the young brain of the students having the industrial design category. Similarly, trademark also, you have got the logo of your college, you have got the logo of your team, hockey team or the basketball team. So this is how this logo could be designed, and the slogans could be designed for your college and the nearby industry, so that they can buy the slogans and the logo from you, and you can get the money out of that. The NEC will give definitely some marks to you for this intellectual property right things. And then a lot of professors are there. I can see so many professors have joined this function today, and they can definitely create so many good books. They can, if you have got some sound production, in the sound production, you can have some recorded musics, and you can have recorded software. You can make the website, you can make short film also, and take the copyright. All copyrights are going to help you in the NEC also. So these three things are the things which you can definitely do a lot of work in your college for achieving some good marks in your accreditation system, NBA system or NEC system. So industrial design, trademark and copyright, the three things are different. And one is a very important thing, that is a patent. That is comes when you have a good laboratory. If you have the master's degree program with you, if you have a MSc, MTech degree with you, you can definitely go for the patents by innovating the experiment and by innovating the new novel technology. So the novel invention having industrial applications can be patented. So these four things today, we are going to discuss one by one in detail, so that you can find out some of the idea for registering the industrial design, trademark, copyright, and of course for filing a patent. After this talk, if I say, if you have been asking yourself this question, then this is for you. It means I have given a lot of good pictures to you, the fourth thing I have given to you, but all I asked was,
can I patent my copyright trademark? It means we don't understand whatever till time I have explained to you. So the patent is different. Copyright is for the books. Trademark is for the symbols of the trade which you are going to use. So copyright and trademark and the trade designs cannot be patented. Patent is only that innovation which comes from the mind and being used into the industry for production of a particular thing. But copyright and trademark and the designs are different things. You can register. Yes, sorry. There was some background music. So I would like to tell you how these things are governed, how these patent systems and IPRs are governed. Number one, that is a trade-related aspects of IPR. So TRIP agreements are there. The TRIP agreement means the TRIP agreement which came into effect on 1st January 1995 is the date the most comprehensive multilateral agreement on the intellectual property right came out. So that's very important. That very important document you must download, and then you must see what is the TRIP related aspects of IPR. Actually, all that things are okay, but till date we are on the same line like the ancient peoples were standing. Like they're saying that after igniting the fire from the two stones, one of the person is asking, it is my greatest invention and I can't figure it out where to put the patent notice on it. Till date, our scientists are on the same position they are standing. They are creating big things, better than the US and the Japan. But what we are doing, we are not patenting them. It means we are standing on the same line. When we started the firing and the fire was there, but we don't know where to put the patent notice on that. So I would like to tell today all the professors, all the teachers, all the students that they should know whether their research, before publication, they should know whether your research is capable of patenting or not. And if your research is capable of patenting, do not go for publication. Immediately file the patent. And after 6 months, you can definitely publish it, or the government of India will publish your patent if it has got some power. So for some time, I think my language is clear to you. If you want, I can talk in Hindi as well as in English, both mixed language. So for that, the students understand better. तो सब थोड़ी देर के लिए मैं आपको वकील बनाना चाहता हूं. जितने भी लोग बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए आप काला कोट जो वकीलों का होता है वो डालिएगा और समझिएगा कि how you can change your idea of thinking a small thing into the big banner. So let us see the legislation. What are the legislation? All scientists has to study this patent system in India, which is governed by the Patent Act 1970, number 39 of 1970, and amended by the Patent Amendment Act, that is 2005, and the Patent Rule 2003, as further amended by the Patent Amendment Rules 2006, which is finally effected from 5th May 2006. मैं यहाँ पे छोटी सी एक आपको 2 मिनट की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ. 2006 से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटी में मैं गया, दैट वाज द मोनाश यूनिवर्सिटी. वर्ल्ड की आज की डेट में वर्ल्ड की 13-14 नंबर की यूनिवर्सिटी हुआ करती है. टॉप अगर 100 यूनिवर्सिटी देखी जाए, मोनाश यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड में 13-14 नंबर आता था. और उस यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहां मैंने पोस्ट डॉक किया, एंड आई कुड डू लॉट ऑफ गुड थिंग. मैंने बहुत चीजें वहां करी. ये मैं आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ. 1999 2000 की बात बता रहा हूँ. तो वहां जाने के बाद जब मैं लौट के इंडिया आता हूं, तो मैं जीन क्लोन करने के लिए अपने गवर्नमेंट को बोलता हूं कि सर आपने मुझे भेजा था. माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंड मी ओवर देयर फॉर डूइंग द रिसर्च. आई केम विद माय रिसर्च एंड आई फाइल्ड अ पेटेंट ऑन द जीन क्लोन व्हिच आई हैव डन ओवर देयर. दे रिफ्यूज्ड. दे टोल्ड, जब मैं 1999 में गया, वहां लौट कर आया, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भारत में जीन क्लोन पेटेंटेबल नहीं है. बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा काम करके आने के बाद हमारे भारत में नियम ही नहीं था कि हम अपने जीन को क्लोन करके पेटेंट कर सकें. और फिर मैं कुछ दिन इंतजार किया, मैं दुखी हुआ काफी, और फिर मैंने वो काम पब्लिश कर दिया कहीं. तो पब्लिश कर दिया, तो
तो वो काम पब्लिश होने के बाद कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला किसी और ने उसमें अमेंडमेंट करके यूएसए के अंदर उस काम को पेटेंट किया है। बड़ा दुख लगता था कि हमारे पास रूल ही नहीं है, और हमारे काम जो हम लोग कर सकते थे, हमारे इंडिया के लोग करते थे, वो बाहर के लोग, क्योंकि जिसने पहले फाइल कर दिया पेटेंट वो जीत जाता है इस चीज में। इसमें सिर्फ ये नहीं है, इसमें आपका टाइम भी देखा जाता है, सेकंड भी देखे जाते हैं, मिनट भी देखे जाते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पे आपने पेटेंट फाइल किया, आपको पेटेंट मिल गया। एक सेकंड बाद अगर आप फाइल करेंगे तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जल्दी से अच्छे काम करने हैं, लेजिस्लेशन पूरा पढ़ना समझना है। ये डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद यू विल डेफिनेटली सी देयर आर लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस रूल्स फॉर पेटेंटिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर कॉलेज। तो मैं थोड़े से सेक्शंस आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर के लिए वकील बनाना है, और इस वकील बनाने के लिए थोड़ा सी देर के लिए आपको ये लॉ समझने पड़ेंगे। मैं लॉ को बड़े प्यारी लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आप इसमें बोर ना हो, क्योंकि साइंस में तो आप डायग्राम बना देते हो, सब कुछ बता देते हो, लेकिन लॉ के अंदर बड़ा मुश्किल होता है उस लेक्चर को पॉपुलर बनाना। तो इसलिए मैं थोड़े से आपको सेक्शन बताना चाहता हूं जो आपको जानने जरूरी है। किसी वैज्ञानिक को, किसी डिजाइनर को, किसी लोगो डिजाइनर को आपको ये सेक्शंस जानने जरूरी हैं। व्हाट इज इन एन इन्वेंशन? व्हाट इज एन इन्वेंशन? एक इन्वेंशन क्या है हमें पता होनी चाहिए लीगल मैनर में। आईपीए सेक्शन 21J आप याद करके रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा। आईपीए सेक्शन इंडियन पेटेंट एक्ट का सेक्शन 2A/J ये जो है ये बताता है कि डेफिनेशन क्या है इन्वेंशन की। ये 2003 से पहले और 2003 के बाद, जब मैं गया था ऑस्ट्रेलिया उसकी बात और मेरे बाद की बात मैं बता रहा हूं। जब मैं वहां गया था तो सबसे पहले ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? इन्वेंशन का मतलब था मींस एनी न्यू एंड यूजफुल, नंबर 1 आर्ट, प्रोसेस, मेथड, मैनर, मैन्युफैक्चर। ये पूरा इंडस्ट्री की तरफ, हमारे पानीपत में और लुधियाना में जितनी भी इंडस्ट्री है उनको अट्रैक्ट करता है ये रूल है। फिर मशीन, एपरेटस एंड अदर आर्टिकल्स। नंबर 3 सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो सारा कुछ तीनों 1, 2 एंड 3 ज्यादातर कहां जाता था? इंडस्ट्री की तरफ जाता था। रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ हमें कम चीजें दिखती थी। इंडस्ट्री के अंदर जो रिसर्च हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, लोग समझते थे कि इन्वेंशन वहीं हो सकती है। हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में इनोवेशन नहीं हो पाती थी। ऐसा 2003 से पहले डेफिनेशन में था। एंड इंक्लूड्स एनी न्यू एंड द यूजफुल इंप्रूवमेंट ऑफ एनी ऑफ देम। ऊपर वाली चीजें तो मैंने बताई हैं, और ये सारी इन्वेंशंस में आया करती थी। तो बड़ी मुश्किल थी, इसलिए बच्चे लोग समझ नहीं पाते थे कि हमने इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर ली और हम पेटेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन 2003 के बाद ये डेफिनेशन जो चीज चेंज हुई है आप सबके फायदे के लिए, देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है इन्वेंशन की, जो कि आप पेटेंट कर सकते हो। इन्वेंशन मींस अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, या प्रोडक्ट हो सकता है या प्रोसेस हो सकता है। इन्वॉल्विंग क्या? इन्वेंटिव स्टेप। ये आपकी दिमाग से निकला, प्रोडक्ट और प्रोसेस था कहीं पे, लेकिन आपने एक इन्वेंटिव स्टेप डाल दिया आपके दिमाग का। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपने यहां डाला, ये आपका राइट है। एन इन्वेंटिव स्टेप जो कि कैपेबल ऑफ इंडस्ट्री एप्लीकेशन। कितनी बड़ी, कितनी अच्छी डेफिनेशन बनाई इंडिया के बड़े बड़े विदों ने, जिसके वजह से 2003 के बाद आज की डेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, एमआईटी और जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अभी आज के दिख रही हैं, इनके पेटेंट इतने ज्यादा हो गए हैं कि गवर्नमेंट वाले पीछे रह गए। अभी एमआईटी यूनिवर्सिटी जो है, इनको सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करने के लिए अवार्ड मिला, और सेज यूनिवर्सिटी को मिला है, और कई दूसरी यूनिवर्सिटियां मैं वेबसाइट में देखता रहता हूं, कितना सारा अवार्ड मिला है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी, कि हम खूब सारे पेटेंट फाइल कर सकें। सो इन्वेंशन का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल रिसर्च को भी आप इन्वेंट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, इंडस्ट्री में लेके जाइए, इंडस्ट्री का एप्लीकेशन बनाइए। फंडामेंटल रिसर्च को भी आप पेटेंट में ले सकते हो, इन्वेंशन की कैटेगरी में ले सकते हो। इंप्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग आर्ट। कोई भी चीज, अभी ये बोतल ऐसी है, अब ये बोतल मेरे को यहां से पकड़ में नहीं आ रही, मैं उंगलियों के निशान बना दूं यहां पे ताकि ये पकड़ में आ जाए, अभी गिर जा रही है ऐसे करके। अगर मैंने ये डिजाइन बना दिया है तो इसमें थोड़ा इस आर्ट के अंदर मैंने इंप्रूवमेंट कर दिया, तो ये भी हमारा इनोवेशन आएगा। सॉल्विंग अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ द आर्ट, अनसॉल्व्ड इश्यू। कोई ऐसी चीज जो कि अब तक अनसॉल्व थी, आपने सॉल्व कर दी, आपकी इन्वेंशन में आएगा। कोई ऐसी चीज जो अब तक अनएड्रेस थी, आपने कर दी,
आपकी इन्वेंशन में आएगा। और कोई बात इस प्रकार से होती थी, आपने इस प्रकार से करनी शुरू कर दी, डिफरेंट अप्रोच विद मोर कन्वीनियंट, डिफरेंट अप्रोच विद मोर कन्वीनियंट। ये चारों कैटेगरियां अब इन्वेंशन की कैटेगरी में आने लगी। और थोड़ा सा आपको बस ये जोड़ना है कि इन चारों कैटेगरीज में इन्वेंशन तो आ गई है, लेकिन इनोवेटिव स्टेप आपके दिमाग से निकलना चाहिए। अगर इन चारों कैटेगरीज में इनोवेटिव स्टेप आप अपने दिमाग से निकाल के एक प्रोडक्ट जो 1000 रुपए का बनता था 100 रुपए में बना के दिखा सकते हो, आपको 100% पेटेंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि आप उसको ईज कर दीजिए, कम लागत कर दीजिए या एनवायरमेंटली फ्रेंडली बना दीजिए, तो वो आपको पेटेंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो व्हाट इज पेटेंटेबल इनोवेशंस, फाइनली हम इसको देखें, फिर आगे चलेंगे कि क्या क्या नहीं किया जा सकता। पहले डिफाइन कर दें आपको कि क्या पेटेंटेबल इन्वेंशन क्या होती है। 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी बताया, अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस involving an inventive step and capable of being made use into the industry. इंडस्ट्री के लिए आपकी जो साइंस है उसको मोल्ड करते हुए एक प्रोडक्ट आप दे देते हो। जैसे एक बच्चा एमएससी करता है, उसको एमएससी को हम करिकुलम पढ़ा देते हैं। अब नई शिक्षा नीति के तहत अगर बच्चा एमएससी कर रहा है तो उसको डेजर्टेशन आखिरी में करवाना है, और वो डेजर्टेशन जो 4th ईयर में उसका या जो बीएससी कर रहा है, सॉरी बीएससी 4 साल की होगी नई शिक्षा नीति में, जो चौथे साल का उसका होगा उसमें डेजर्टेशन कराया जाएगा। वो 1 साल तक आपको यही वाले काम कराए जाएंगे कि आप अपने लोकल एरिया को लेते हुए, इंडस्ट्री को लेते हुए इनोवेटिव स्टेप डाल के उसकी डेजर्टेशन करवाएं। कितने वंडरफुल थिंग आ रही है ना। तो इंडस्ट्री को आपको भूलना नहीं है। जहां पे भी जिस इंसान का कॉलेज है वहां की आसपास की इंडस्ट्री को हमें टारगेट करना है और वहीं की प्रॉब्लम्स दूर सॉल्व करनी है। ये बड़ी मुश्किल चीज होती है कि इंडस्ट्री है नहीं, यहाँ पे आप बात कर रहे हो यूएसए की और यहाँ रिसर्च कर रहे हो, तो वो यूएसए में तो आपका टेक्नोलॉजी लेके कोई जाएगा नहीं। आपकी इंडस्ट्री जो चलती है, आप उसकी इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से इनोवेशन कर सकते हैं, कौन से डेजर्टेशन होंगे, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड डेजर्टेशन आपको कराने पड़ेंगे। It means the inventions to be patentable should be technical in nature. इसका क्या मतलब हुआ कि जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आप अपने हर विद्यार्थी को थोड़ा सा टेक्निक सिखाओगे, टेक्निकल नेचर डालोगे इसके दिमाग में काम करने का, एंड शुड मीट द 3 फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरिया, अगर आप कोई चीज पेटेंट करना चाहते हो तो 3 क्राइटेरिया आपको बहुत जरूरी है। नंबर 1, नोवेलिटी, नयापन। नोवेलिटी का मतलब ये नहीं कि अभी अभी पैदा हुआ है, नोवेलिटी का मतलब ये नहीं कि अभी जस्ट बॉर्न है, मतलब दिमाग से निकला हुआ जस्ट बॉर्न आइडिया है ना। द मैटर डिस्क्लोज्ड इन द स्पेसिफिकेशन इज नॉट पब्लिश्ड। जो निकला है और किसी ने देखा नहीं है उसको पब्लिकेशन नहीं किया किसी ने। अगर आपने अपनी नोवेलिटी खो दी है तो समझ लीजिए हमारे इनोवेशन की वर्जिनिटी खो दी। अगर आप पब्लिश कर दिया आपने तो आप उसको पेपर को उस इनोवेशन को आप पेटेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इट इज नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया और एल्सवेयर बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया। मतलब जब तक आप आपकी एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हो वो चीज कहीं छपनी नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिए, बच्चों के लिए खास तौर से है, टीचर्स के लिए भी है। टीचर क्या करते हैं, टीचर बच्चों को जरा सा कोई काम बेचारे करते हैं तो उनको बोलते जाओ वो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पेपर पब्लिश करके आओ। बच्चा बेचारा जाता है और वो जो इतनी बड़ी इनोवेशन उसने करी वहां पब्लिश करके आ जाता है कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो पेपर भी छोटा सा छप जाता है, लेकिन आपका आइडिया तो खराब हो गया ना, somebody has seen it। तो नोवेल्टी आपको बचा के रखनी पड़ेगी। अगर आपके इनोवेशन में ताकत है इंडस्ट्री में जाने की तो नोवेल्टी बचा के रखनी पड़ेगी। दूसरा, सेकंड चीज, इन्वेंटिव स्टेप। द इन्वेंशन इज नॉट ऑब्वियस। कभी भी इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं होती। अगर ऑब्वियस होती तो कितनी इनोवेशन हो जाती। तो इन्वेंशन इज नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट इन द लाइट ऑफ द प्रायर पब्लिकेशन नॉलेज एंड डॉक्यूमेंट। इन सारी चीजों से ऊपर होती है, वो ऑब्वियस नहीं होती। ऑब्वियस होती तो कोई छपी होती। तो इन्वेंटिव स्टेप आपके दिमाग का होगा, कोई नया उसके अंदर एक स्टेप होगा जिससे उस नोवल चीज को आप एक कदम ऊपर आगे लेके जा रहे हो। नोवल चीज आपने ढूंढी थी, नोवल आइडिया आपने ढूंढा था, छापा नहीं, रिसर्च करते रहे, उसमें इन्वेंटिव स्टेप लगा के उसको ऊपर लेके गए और ये देखा कि फाइनली तीसरा कैरेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मींस इन्वेंशन शुड possess utility so that it can be made or used into the industrial application। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी बस।
नोवेलिटी होनी चाहिए। कृपया रिसर्च को छापे ना जब तक उसका आपका टीचर ये ना बोल दे कि वो पेटेंट होने लायक है कि नहीं। इन्वेंटिव स्टेप उसके अंदर डालिए, अगर नहीं है तो डालने की कोशिश कीजिए। तीसरा, जब इन्वेंटिव स्टेप डालोगे तो क्या मेरी रिसर्च इंडस्ट्री में यूजफुल है कि नहीं है, ये 3 चीजें देखनी है। बाकी गवर्नमेंट देखेगी, 3 चीजें आप देखते जाइए और पेपर फाइल करना शुरू कीजिए, आपकी कॉलेज को खूब सारे पेटेंट प्राप्त होंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल। अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या पेटेंट हो सकता है, ये वाली लिस्ट जरूरी है जानना। पहली वाली लिस्ट तो चलो डेफिनेशन है, आपने देख ली, कोई बात, ठीक है, लेकिन ये लिस्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो ये कहां आती है, इन्वेंशन दैट कैन नॉट बी पेटेंट, किसके, आईपीए सेक्शन 3। पहला वाला मैंने आईपीए सेक्शन 1J बताया था, अब आईपीएस सेक्शन 3 है। ये 2 सेक्शंस आपको जानने बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, क्या पेरिवोलस नहीं होनी चाहिए, एमए नहीं होनी चाहिए, एमए नहीं रिसर्च होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए उसके अंदर, कोई सेंस होनी चाहिए। बी क्या है, कंट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉ है ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, इनके कॉन्ट्रेरी आपकी इनोवेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इसके कॉन्ट्रेरी होगी, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट होगी, तो आपको पेटेंट नहीं प्राप्त होगा। नंबर सी, ए बी सी मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, ए ओ तक है, ऐसे और भी हैं। तो सी है कंट्रेरी टू मोरालिटी, मॉरल वैल्यू जो है हमारी, उन मॉरल वैल्यू से कंट्रेरी नहीं होनी चाहिए। और इंजीरियस टू पब्लिक हेल्थ, जो हमारी पब्लिक है, हमारा एनवायरमेंट है, हमारे एनिमल्स है, हमारे प्लांट है, हमारे जितने भी आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए इंजूरियस नहीं होनी चाहिए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोरालिटी वाली बात आ गई ऊपर 3। तो ऐसी चीजें जो हमारे लॉ के अगेंस्ट ना हो, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट ना हो, इंजीनियर ना हो, और ऐसी एमए ना हो, तो ये 3 चीजें तो ये आपको देख ली। अब साइंटिफिक वाली बात, साइंटिफिक प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑलरेडी बन चुके हैं, इनको थोड़ा सा कुछ नया डाल के, नमक मिर्च डाल के इसको तड़का लगा देते हैं, वो भी नहीं चलता। No scientific principle and abstract theory should be published. It is the different line. It is the patent. It is the copyright line. है ना? तो ये प्रिंसिपल जो है ऑलरेडी वो है, आप उसको चेंज करते हुए, अपने प्रिंसिपल बनाते हुए पेटेंट नहीं कर सकते। नंबर ई, न्यू प्रॉपर्टी और यूज ऑफ अ नोन सब्सटेंस। कोई नया सब्सटेंस आपको मालूम था, आपने उसकी एक नई प्रॉपर्टी देख ली, और जो आपने देखी लोगों ने भी देखी थी, लेकिन आप बोल रहे मैंने पहली बार देखी है, तो उसको प्रूफ करना पड़ा, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी पता चला पेटेंट नहीं होगी। नंबर एफ है मेयर एडमिक्सचर, ये त्रिफला चूर्ण खाते हैं, आंवला, हरड़ा, बहेड़ा, 3 चीजें होती हैं उसके अंदर। अब हम बोले कि नहीं भाई, आंवला की अलग प्रॉपर्टी थी, हरड़ा की अलग प्रॉपर्टी थी, बहेड़े की अलग प्रॉपर्टी थी, और मिला के त्रिफला चूर्ण बन गया, लेकिन ये एडमिक्सचर है। मेयर एडमिक्सचर कैन नॉट बी पेटेंटेड, यू कैन नॉट पेटेंट इट, ठीक है ना, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है इसके, यू कैन नॉट पेटेंट इट। जी देखिए, मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ नोन डिवाइसेस ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इज नॉट पेटेंटेबल। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग फिर इसीलिए क्या करते हैं, जो वो प्रोजेक्ट मेकर होते हैं, कि थोड़ा सा सारा सामान लिया, प्रोजेक्ट बना दिया, बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया 7,000 रुपए में, उसका डेजर्टेशन हो गया ना। यहीं पे हम मार खा जाते हैं कि हम बनवा के लेके आते हैं प्रोजेक्ट, और 7-8 रुपए दे के प्रोजेक्ट बना दिया, हमारी एमएससी हो गई, एमटेक हो गई। वो नहीं करना है आपको ये अरेंजमेंट वाली बात नहीं करनी, उसमें इनोवेशन डालनी है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये बायोलॉजी वालों के लिए 4 गुण हैं जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हुए हैं, HIJK, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जितने भी मेथड है, आपका हल है, आपके ये फराटे हैं, आपकी मशीनें हैं, ये आप पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप यूज कर रहे हो अपने खेतों में, लेकिन पेटेंट नहीं कर सकते। हॉर्टिकल्चर, फूल लगाने की टेक्नोलॉजी आप नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक मेथड। अब ये डॉक्टर बन जाते हैं, एमबीबीएस बन जाते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। इन डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी पोथियां रटी, और रट के जो पोथियों में लिखा है वही रट के आपको दवाई दे दी। इन्होंने अपने से क्या किया, व्हाट यू हैव डन, आपने ह्यूमन बीइंग को ठीक करने के लिए क्या किया, वो नहीं, वो सिर्फ लिखा हुआ ज्ञान है, आपने याद रखा था, मौके पे दवाई आई, आपने दे दी, लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो भी आपकी किस्मत है। तो ये पेटेंट नहीं कर सकते आप,
ठीक है ना। इसके अंदर क्या पेटेंट कर सकते हैं आगे चल के बताऊंगा, इन तीनों चीजों के बाद। प्लांट एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट ऑफ दैट यू कांट पेटेंट। एक नया प्लांट दिखा आपको, आप इसको पेटेंट करना चाहोगे तो नहीं, आप नहीं कर सकते पेटेंट। नया प्लांट दिखा, नया एनिमल दिखा, आप पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने थोड़ी बनाया है, ये तो खुदा ने बनाया था, छुपा पड़ा था, आपने ढूंढ लिया। इसको पेपर में छाप लीजिए, कॉपीराइट ले लीजिए इसका कि पहली रिपोर्ट आपने बनाई है, लेकिन पेटेंट नहीं कर सकते इसको, है ना। और फिर इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस, डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शंस है, ये जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इनको इसेंशियल है कि जिंदा रहने के लिए उसको जरूरी थे, वो चला रहा है, आज से थोड़ी चला रहा है, कई सालों से चला रहा है। लेकिन अब इन सब चीजों में आप पेटेंट नहीं कर सकते हैं। पेटेंट क्या कर सकते हैं मैं आपको अब बताता हूं इसमें। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप हल से खेत जोतते हो, आप बोलते हो मेरे दादा ने जोता, मेरे परदादा ने जोता और ये हल हमारा है, हम इसको पेटेंट करेंगे। आप हल को नहीं पेटेंट कर सकते, क्योंकि बहुत पहले किसी न किसी से, जैसे मैंने फायर वाली बात बताई थी ना, और वैसे ही हल वाली बात है। तो लेकिन हल किससे चलता था, पहले इंसान खींचता था, फिर बैल खींचता था, फिर हल को चेंज करके ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया और उसमें भी मॉडिफिकेशन कर दिए। ट्रैक्टर चलता है डीजल के साथ। अब डीजल बहुत महंगा होता चला जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ करना तो है, मुझे इनोवेशन करनी है। मैंने ऐसा ट्रैक्टर बना दिया जो कि डीजल से चलता ही नहीं है, पानी से चलता है। ये बात मेरी पेटेंटेबल हो सकती है। एग्रीकल्चर के अंदर रिवॉल्यूशन आ जाएगा कि पानी से तो हम ट्यूबवेल लगा के खेतों को सींचते हैं, लेकिन उसी पानी से क्या हम हल चला सकते हैं? ऐसी सोच, ऐसी विचार बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने करके दिखाया है इस चीज को। केमिस्ट्री वाले लोगों ने करके दिखाया है इसको। उन्होंने पानी लिया, यानी बोतल ली, बोतल के अंदर वो एल्युमिनियम का छिलका डाला, एल्युमिनियम जो होती है ना, एल्युमिनियम की फांसें डाली, उसमें टंगस्टन वायर, प्लेटिनम की वायर डाली, उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी निकाली। एल्युमिनियम की प्रेजेंस में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी चली तो उसने पानी को तोड़ दिया, हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन को मीथेन के साथ बना दिया, मीथेन इज अ फ्यूल, उससे तुम्हारी गाड़ी चल गई। ये चीज है जो पेटेंट कर सकते हैं आप। ऐसे बच्चों के अंदर, दिमाग के अंदर आपको चीजें डालनी पड़ेंगी जिससे बच्चे न्यू इनोवेशन करें, है। अब ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग मैंने बताया, डॉक्टरों वाली बात, एनिमल वाली बात। अब डॉक्टर ने जो चीज पढ़ के बताई थी वो रटता चला जा रहा है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो डॉक्टर दे रहा है, डॉक्टर को खुद नहीं पता, डॉक्टर को सिर्फ दवाई का नाम पता है। वो मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे इस कॉलेज के बच्चे जो पढ़ते हैं वो बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने वो बॉन्ड है, बायोकेमिस्ट्री के बच्चे बता सकते हैं। अब वो अगर एक बॉन्ड तोड़ के दूसरा लगा दिया और वो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, दैट इज द इनोवेशन। एक बॉन्ड यहां से तोड़ के इधर लगा दिया तो दैट इज द इनोवेशन। वो प्रॉपर्टी, उस मॉलिक्यूल की एक्टिविटी आपने बढ़ा दी, इंडस्ट्री में देखा, अरे बाप रे प्रोडक्शन ज्यादा शुरू हो गया, अरे ज्यादा लोग ठीक होने शुरू हो गए, दैट इज व्हाट इज द पेटेंटेबल। प्लांट एंड एनिमल भी नहीं आप पेटेंट कर सकते, लेकिन प्लांट के अंदर जो अंदर क्रियाएं हो रही हैं उसके अंदर एक चीज डाल के एक चीज निकाल दी, तो आपने देखा कि पहले प्लांट इतना नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था, लेकिन अब तो भाई 10 गुना नाइट्रोजन फिक्स करनी शुरू कर दी। क्या बात है, ज्यादा दाने बनेंगे उसके अंदर, ज्यादा फूल लगेंगे उसके अंदर, ये बात पेटेंट कर सकते हो आप। तो इसलिए आपका ध्यान अब जो है इनोवेटिव आइडियाज की तरफ होना चाहिए। चलिए आगे LMNO जो रूल्स हैं इसको भी देख लेते हैं। ये मेरे मैथमेटिक्स वाले भाइयों के लिए है। मैथमेटिक्स और बिजनेस मेथड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एज पर से एल्गोरिथम इज नॉट पेटेंटेबल। लेकिन इस मैथमेटिक्स से इसको आप कॉपीराइट कर सकते हो। जो आप मैथमेटिकल थ्योरम बनाते हो कॉपीराइट कर सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हो वो कॉपीराइट कर सकते हो, एल्गोरिथम बनाया आपने वो आपने कॉपीराइट कर लिया, बिजनेस मॉडल बनाया वो कॉपीराइट कर लिया, ठीक है ना, ट्रेडमार्क कर दिया। तो लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क अगर आपके पास है, लिटरेरी या ड्रामेटिक्स है या म्यूजिकल वर्क का आर्टिस्ट बनाया आपने, कोई पेटेंट वाली कोई अच्छी आपने आर्टिस्टिक वर्क बनाया, इसको आप कॉपीराइट ले सकते हो, पेटेंट नहीं कर सकते। मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स को आप कॉपीराइट ले सकते हो, पेटेंट नहीं कर। प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन को आप कॉपीराइट ले सकते हो, पेटेंट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप जो बायोलॉजिस्ट बैठे हैं और बाकी वाले केमिस्ट्री वाले बैठे हैं आपके साथ और फिजिक्स वाले मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो HIJK के साथ साथ ऊपर के कुछ और न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द नोन सब्सटेंस एटसेट्रा ये देख लें। तो अब आपको पता चल गया होगा IPA सेक्शन 3, जब भी आप बच्चों को PhD टॉपिक दें तो ये सारे सेक्शन देख लें कि आपकी रिसर्च इस सेक्शंस को
कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रही। अगर ये सेक्शंस के अंदर आ रही है और कंट्राडिक्ट कर रही तो पेटेंट कर लीजिए, अगर इसको फॉलो कर रही है तो आप पेटेंट नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली गुड न्यूज ये है कि चेंज सिनेरियो ऑफ द इंडियन पेटेंट क्या है। 2005 की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, जिसे हमें बहुत राहत की सांस प्राप्त होती है। प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग प्रोडक्ट पेटेंट इन ऑल फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग केमिकल, फूड, ड्रग एंड एग्रोकेमिकल। ये सारी फील्ड आ गए इसमें, केमिकल आ गया, फूड इंडस्ट्री आ गई, ड्रग आ गई, एग्रोकेमिकल आ गई, ये सारे के सारे आ सकते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अभी तक मैं पढ़ा रहा था, लेकिन 2005 की नई डेफिनेशन है, इसके तहत सब कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग प्रोडक्ट पेटेंट इन ऑल फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखना है कि आपको केमिकल में भी टेक्नोलॉजी लानी है, मतलब इंडस्ट्री से जोड़ देना है। फूड के बीच में भी टेक्नोलॉजी लानी है, इंडस्ट्री से जोड़ देना है। ड्रग्स के बीच में तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है ही है, और एग्रोकेमिकल्स को भी, एग्रीकल्चर को भी टेक्नोलॉजी के बेस के रूप में लेके आके आप अपनी बात को पेटेंट के दायरे में ला सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल डेफिनेशन व्हिच इंडियन पेटेंट एक्ट इन 2005 हैज गिवन टू अस। तो याद रखने वाले कौन कौन से अपने को चीजें, जब पेटेंट ऑफिस जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, आपका सामान कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर आपके आइडिया कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर आपको सेक्शन 21J मतलब इन्वेंशन की डेफिनेशन पता है, नंबर 1। अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं तो सेक्शन HIJK आपको पता है, और अगर आप केमिस्ट हैं या अदर कुछ है तो आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल एडवर्टरी थ्योरी PFGH पता है कि नहीं पता है। तो इस प्रकार से सारे ये आइडिया आपको पता होंगे, तब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप पेटेंट ऑफिस में जाके अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। और गुड न्यूज है कि आजकल तो पेटेंट ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में जाया करते थे, आजकल तो आपको ऑनलाइन पेटेंट जमा करने की सुविधा अवेलेबल है। आप ऑनलाइन पेटेंट जमा कर सकते हैं। और खुशी की बात बताऊं, अभी 5 या 6 दिन पहले हमारे मिनिस्टर ने, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और शायद एफिलिएटेड का ये मुझे पता नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए, या अच्छी वाली जो इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए 80% फीस माफ कर दी है। पेटेंट्स की 80% फीस। पहले 80,000 रुपए लगता था एक पेटेंट फाइल करने का, अब 80,000 का 80% आप देख लीजिएगा, 10 से 12,000 के अंदर आप एक पेटेंट फाइल कर सकते हैं। और आई थिंक कॉलेज के पास इतना पैसा होता है कि वो आपके बच्चों को एक जब भी उनका पेटेंट निकले तो फाइल करने में उसकी मदद करे, और आपके कॉलेज को खूब पेटेंट्स प्राप्त हो। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पेटेंट फाइल करना है, कैसे रिसर्च करनी है, और कैसे आपको पेटेंट फाइल करना है। अब आपको पहले देखना है कि आपकी रिसर्च के अंदर तीनों गुण है कि नहीं है। कौन सा? नोवेलिटी, और दूसरा इन्वेंटिव स्टेप, तीसरा इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन। अगर तीनों स्टेप हैं, और आपको फिर लिखना है, जैसे आप रिसर्च पेपर लिखते हो कि मैंने ये किया, मैंने पेट्री प्लेट ली, मैंने पेट्री प्लेट में ये लगाया, मैंने फ्लास्क में ये डाला, वो डाला, ये सारी बातें आप लिखते हो पेपर जब आप छापते हो। अब आपको लिखना क्या है? जब आप पेपर छापते हो तो आप लिखते हो कि मैंने ये चीज डाली, ये चीज डाली, ये चीज डाली, और ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, इसका ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट। अब आपको हर लाइन में ये लिखना है कि ये डाला था मैंने, इतने अमाउंट का डाला था, इसको मैं क्लेम करता हूं, ये मेरी दिमाग से मैंने सोच के डाला, ये जब मैंने डाला तो ये चीज बनी, और ये बनने के बाद मैंने ये चीज डाली, और ये सोच के डाली कि इसके अंदर ये चीज होगा, ये इसको मैं क्लेम करता हूं। आपको हर बात एंड हो रही है आपके पेपर में, उसको क्लेम करना है। मतलब अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा क्लेम। इसलिए आपको अपनी पेटेंट लिखने में और रिसर्च लिखने में सिर्फ एक इतना फर्क है कि यू हैव टू क्लेम द फाइंडिंग्स। हम लोग वहां पे क्लेम नहीं करते हैं। पेपर जब लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ये फाइंडिंग आई थी, ये बड़ा अच्छी फाइंडिंग है, उसने ऐसे करी थी, हमने ऐसे कर दी, उसने ऐसे करी थी, हमने ऐसे कर दी, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इन हर चीज को आपको क्लेम करना, एक फॉर्मेट होता है, प्रोविजनल फॉर्मेट और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल के लिए 3-4 हजार रुपए लगते हैं सिर्फ, कंप्लीट के लिए 8,000 रुपए लगते हैं। आजकल तो और कम हो गया है। तो आपको ये तैयार करना है इनके फॉर्मेट में, फिर आपको फाइल करना ऑनलाइन फाइल करने के बाद 18 महीना, देखो, इफ प्रोविजनल इज फाइल्ड कंप्लीट एप्लीकेशन टू बी फिल्ड इन 12 मंथ। अगर प्रोविजनल लिखा है तो कंप्लीट एप्लीकेशन आपको 12 महीने के अंदर दे देनी है, नहीं तो आपका पेटेंट अबेंडन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने फाइल किया, फाइल करने के बाद करीब 18 महीने लगते हैं। वो लोग पूरा स्टडी करते हैं, आपके पेटेंट को उधेड़ देते हैं वो लोग, पेटेंट ऑफिस वाले पूरा पढ़ डालते हैं,
और उसके बाद उसका अगर उसमें जान है तो वो पब्लिश करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट होता है जिसमें आपका पेपर पेटेंट वाला छपता है जो आपने फाइल किया है। वो पूरी दुनिया के लिए खुलता है, जबलपुर या इंडिया के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए खुलता है। अभी सारे लोग देख लो, फलाने आदमी ने क्लेम किया है ये बातें, तुम्हारा तो नहीं कुछ क्लेम कर लिया इसने, देख लो इसके अंदर किसी चोरी तो नहीं है। तो ये 18 महीने बाद खुलता है, सारी दुनिया उसको देखती है। देखने के बाद फिर लोग क्लेम करते हैं, अरे संधू साहब वाला काम तो मेरा काम है, मैंने इस साल में कर चुका हूं, पहले ये मेरा छप चुका है, तो मेरे को फिर पेटेंट नहीं मिलेगा उसका। इसीलिए मैंने कहा कि काम आपका छपा नहीं होना चाहिए कहीं। तो उसके बाद जब 18 महीने की स्टडी हो जाती है तो रिक्वेस्ट करते हैं आप एग्जामिनेशन की, भाई आप हमारी लैब में आके या हमारा वकील आके इसको चेक कर ले, एग्जाम करवा ले कि कोई चीज हमने जो करी थी वो पूरी ऐसी की ऐसी है, और ये संभाल के रखना पड़ता सारा। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन होता है, थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं, एग्जामिनेशन इश्यू की जाती है, फर्स्ट रिपोर्ट। इसके बाद अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको पेटेंट ग्रांट मिल जाता है। ऑब्जेक्शन जो आते हैं 12 महीने, फिर भी ग्रांट होने के बाद भी 12 महीने तक आपका वो खड़ा रहता है, लोग ऑब्जेक्शन करते हैं और उन ऑब्जेक्शंस को आप कोर्ट में जाकर बोलते हैं नहीं साहब ये गलत बोल रहा है, मैंने ठीक किया, मेरा ये वाला काम है, मैंने ऐसे किया, तो आपको प्रूफ करना पड़ता है। अपोजिशन आती रहती है 12-12 महीने बीच बीच में। अपोजिशन से डरना नहीं होता क्योंकि काम आपका है, आपने किया है, किसी और ने वो काम किया नहीं होगा, आपने किया होगा। तो फिर फाइनली आपको डिसीजन कंट्रोलर का होता है, आपको वो ग्रांट हो जाता है। अपील भी कर सकते हैं कोई इसको, और रिवोकेशन एंड अमेंडमेंट भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से लंबा प्रोसेस, 12 महीने फिर 18 महीने, ये लगा लो 30 महीने तो यही हो गए। उसके बाद 2-4 साल, मेरे पेटेंट तो अभी तक 8-8 साल में लड़ रहा हूं मैं, पेटेंट अभी तक हुए नहीं लेकिन अभी चल रहे हैं। तो आई एम स्टिल फाइटिंग फॉर ऑल माय पेटेंट्स, ओल्ड पेटेंट्स के लिए, एंड कीप ऑन एप्लीकेशंस इनटू न्यू पेटेंट। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन फाइल द पेटेंट। अब पेटेंट के बाद हम थोड़ा सा, समय कम है, मेरे ख्याल से मुझे 1:30 बजे तक का टाइम दिया था, 11 से 12:30 का टाइम दिया शायद। 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैं ट्रेडमार्क वगैरह जल्दी जल्दी समझा देता हूं आपको। ये ट्रेडमार्क है, देखिए, मीनिंग, साइन, कॉम्बिनेशन एंड साइन, ये सारे के सारे, ईबे हुआ, ईए हुआ, ये सारे ट्रेडमार्क हैं। तो आप अपने कॉलेज में कंपटीशन करवा के इंडस्ट्री को ला के इंडस्ट्री को बोलो कि आप हमारे बच्चों से आप ये ट्रेडमार्क कंपटीशन करवाइए, जो बेस्ट होगा वो बच्चों को भी मिलेगा अवार्ड और वो कंपनी को भी। कंपनी लाखों रुपए देती है बाहर, लेकिन बच्चों के साथ जो होगा, जो बच्चे का भी एडवर्टीजमेंट होगा, बच्चे के स्किल का एडवर्टीजमेंट होगा, तो वो नए नए ट्रेडमार्क बना के देंगे। ये देखिए, गूगल, अमेजॉन, सबवे, कोका कोला, मेरे ख्याल से मैकडी वगैरह के तो बड़े अच्छे बना सकते हैं, बच्चों को बड़ा शौक है अमेजॉन, गूगल का, तो ये अच्छे अच्छे ट्रेडमार्क बना सकते हैं आप लोग, है जो कि कंपनी, और ये भी देखना होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट बिके, ऐसा ट्रेडमार्क बने कि कंपनी का प्रोडक्ट बिके। ये टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स हैं कुछ। ये फर्दर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, जो ऑलरेडी हो गया वो कैन नॉट बी रजिस्टर्ड होगा। आपने देखा होगा वैसलीन, वैसलीन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वैसलीन तो एक नाम है, एक ब्रांड है, लेकिन जेनरिक नेम इसका पेट्रोलियम जेली है। फेमस किससे? वैसलीन से। हम कभी भी सर्दी आती बोलते हैं वैसलीन खरीद लो, वैसलीन लगा दो होंठ नहीं फटेंगे, वैसलीन लगा दो स्किन नहीं फटेगी। वैसलीन इतना पॉपुलर हो गया कि ट्रेडमार्क जेली इसको भूल गए हम लोग, पेट्रोलियम जेली, तो ये उसका ट्रेडमार्क है। तो ऐसे ट्रेडमार्क, बैंडेड हुआ आपका, है ना। जिरोक्स, तो जिरोक्स कोई चीज थोड़ी है, जिरोक्स तो इस मशीन का नाम नहीं है, वो कंपनी का नाम था, ये तो फोटोकॉपी मशीन का नाम है, लेकिन जिरोक्स फेमस हो गया। आज की डेट में फोटोकॉपी का सिनोनिम जिरोक्स हो गया। तो ये ट्रेडमार्क, अगर ट्रेडमार्क में इतना दम है आपके कि वो इस प्रकार से दुनिया में आपका ट्रेडमार्क चल सकता है, आपके बच्चों का, जो आपके बच्चे आईक्यू वाले हैं उनका चल सकता है, तो आप बना सकते हैं इस प्रकार से। पीडीएफ का एडोबे है, जस्ट डू इट है, आई एम लविंग इट, फोर्ड, एक्सी, ये सारे ट्रेडमार्क हैं। इसके लिए एक डिजाइनर का कोर्स होता है, आपके कॉलेज में आप वो कोर्स शुरू कर सकते हैं। ये यूएसए में 25-20 लाख रुपए देकर कोर्स करने जाते हैं लोग। यूएसए में 1 साल का कोर्स है, लंदन में लोग जाके कोर्स करके आते हैं, ये सीख के आते हैं वहां पे। अरे आप शुरू कर लीजिए अच्छे अच्छे कोर्स, ऐसे आपका कॉलेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, आप एक उनके यहाँ से नया कोर्स शुरू कीजिएगा, और ये डिजाइन, ट्रेडमार्क डिजाइन का आप कोर्स बच्चों को सिखाइए कैसे करते हैं। तो बच्चे जब सर्टिफिकेट होगा तो बच्चे कुछ कर सकेंगे, उसमें डिवाइसेस हैं, ये सब बच्चे देखें, स्टूडेंट्स कैन डू इट। बारबी हुआ, amazon.com हुआ, ये देखिए कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल डिजाइन में आपने देखा वेस्पा था, पुराना फोन था, और ये बॉटल मैंने आपको बताई, ये डिजाइन बताई। तो इस प्रकार से डिजाइन कंपटीशन जो है, डिजाइन एक्ट 1911 का है, बहुत पुराना है, डिजाइन एक्ट 2000 वाला भी है, और कुछ फर्दर रूल हैं यूएसए के जो कि डिजाइन में लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर वहां के डिजाइन ले रहे हैं।
2D एंड 3D दोनों भी यूज कर सकते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल डिजाइन, ठीक है ना। और मेक बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यार डिजाइन बना के नए नए डिजाइन बनाइए, कंपनियों को बेचिए, लाखों करोड़ों रुपए आपका कॉलेज कमा सकता है, लाखों रुपए बच्चों को एज अ रॉयल्टी मिल सकती है अगर कोई डिजाइन हिट हो गया, है ना। तो जैसे वो कंपटीशन के लिए आते हैं ना, बच्चा इंडियन आइडल में अभी आए थे, कॉलेजों से स्कूलों से बच्चे सिलेक्ट करके ले जाते हैं, तो अपने स्कूल कॉलेज का नाम होता है, अपने स्कूल का नाम होता है, अगर किसी बच्चे को वो इंडियन आइडल का टॉप मिल गया। उसी प्रकार से हमारे इन बच्चों को भी डिजाइन सिखाइए, इंडस्ट्रियल डिजाइन सिखाइए। बेटा बाहर की लुक कैसी लगेगी, अच्छी लुक लगे बाहर की, जिसका ड्राइंग अच्छा है तो ड्राइंग वाले बच्चों को आप इंडस्ट्रियल डिजाइन सिखा सकते हैं। ये इसके लॉ है, ये है इंडस्ट्रियल डिजाइन का ओरिजिन क्या है, ये सब देख सकते हैं। डिजाइन का एडवांटेज क्या है, ब्यूटीफुल अपीलिंग होना चाहिए, इंक्रीज मार्केट पोटेंशियल। आपका जो डिजाइन बनाते हो, आपकी जो आर्ट फोटो बनाते हो, आप डिजाइन बनाते हो, वो मार्केट की पोटेंशियल होनी चाहिए। सेफ गार्डिंग द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट को बचाते हुए, एक्सक्लूसिविटी सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता, इतना अच्छा आपने बनाया। एनकरेज फेयर एंड कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिस, प्रमोट क्रिएटिविटी। तो ये क्रिएटिविटी वाला जो पॉइंट है, आपके स्टूडेंट जो बच्चे 10वीं 12वीं क्लास के होते हैं और जो बच्चे ड्राइंग सीख के 12वीं क्लास करके कॉलेज में आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है। उनकी ड्राइंग, अगर एक भी बच्चा ड्राइंग करता तो उसको आप डिजाइन में डालिए और डिजाइन बनवाना शुरू कीजिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, लोग बैठे बैठे डिजाइन करते हैं। ये देखिए कप कितना अच्छा है, ये वाला कप देखिए, फायदा कितना है इस कप का मालूम है। ये आपका जो ये आपके जो बिस्किट, आजकल बरसातों को दिन है, बिस्किट 5 मिनट में सिल जाते हैं। बिस्किट सिलेगा नहीं अगर इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये डिजाइन बनाया किसी ने, कितना अच्छा डिजाइन है। कप के अंदर नीचे गर्म होता है, उसके अंदर बिस्किट डाल दिए और आपने चाय पीनी शुरू कर दी, एक एक निकाल के बिस्किट खाते रहे ताकि बिस्किट क्रंची रहे, है ना। तो इस प्रकार से ये पेनर है, स्पेनर है, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन है जो बच्चे बना सकते हैं, बच्चे सोच सकते हैं। तो ये डिजाइन का एक्ट है, किस किस एक्ट के अंतर्गत आता है। कुछ और डिजाइन में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन बता रहा हूं। ये अपने सूट केसेस हैं, ये चलने वाली लकड़ी है, वॉकिंग स्टिच है। तो पंखे तो हर बार चेंज होते रहते हैं, पंखे इतने सारे पंखे हैं, तो आप अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। इसको भी पेटेंट करने के लिए वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था, फाइलिंग इन एप्लीकेशन। ये जल्दी हो जाते हैं, ये 8-9 साल नहीं लगती, ये 6 महीने के अंदर डिसाइड हो जाता है। अच्छी फोटो बनाइए, उस प्रोडक्ट का कंपनी से एग्रीमेंट कर लीजिए, फाइल एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्शन आएंगे कि बराबर तो नहीं है, किसी और के डिजाइन तो नहीं है, नोटिफिकेशन होगा, रिफ्यूजल हो जाएगा अगर बराबर होगा, और नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर द पब्लिकेशन दे जाएगा। जहां ये पेटेंट पब्लिश हुआ, आपके कॉलेज को पैसे पूरे 10 का 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे उसके अंदर। तो ये चीजें सोचिए, हम लोग सिर्फ पेटेंट की तरफ जाते हैं, हम लोग डिजाइन फाइलिंग की तरफ नहीं जाते हैं, हमें डिजाइन फाइलिंग भी करवानी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, कीप अ कॉपी ऑफ द डिजाइन एज क्रिएटेड इन योर फाइल। ये आप हमेशा रखिए और ये सेव करके रखिए, आपके कॉलेज में रखिए, बच्चे के पास भी रहने दीजिए। मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द डिजाइन। डू नॉट डिस्क्लोज द डिजाइन बिफोर फाइलिंग इट फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होनी चाहिए, डिजाइन एप्लीकेशन बिल्कुल। पे रिन्यूअल फी। आपका जो डिजाइन है वो 10 साल के लिए बनता है, अगर आप भूल गए कि इसको रिन्यू नहीं करना तो कोई और ले सकता है, इसलिए उसको पे की फीस कर दीजिए, 10-15 हजार रुपए की फीस होती है, वो फीस पे कर दीजिए जो कि इंडस्ट्री देती है, और वो पेटेंट फिर आपका आगे चलता रहता है। आगे चलिए, कॉपीराइट की बात बता दूं थोड़ी सी आपको। व्हाट इज द कॉपीराइट? रिस्पेक्ट कॉपीराइट, सेलिब्रेट क्रिएटिविटी ऑलवेज। इस चीज को मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, रिस्पेक्ट कॉपीराइट, सेलिब्रेट क्रिएटिविटी। अपना लिखना सीखिए, दूसरों की लिखी हुई चीजें मत कॉपी रॉन्ग मत करिए, कॉपीराइट करिए, कॉपी रॉन्ग मत करिएगा। कभी भी कॉपी रॉन्ग मतलब आपने चोरी कर लिया है ना, है ये बहुत खतरनाक है यूएस का। लोग अगर कॉपीराइट करते हुए पकड़ जाते हैं तो आपको लाखों रुपए पेनल्टी में देने पड़ते हैं। ध्यान रखें, आपको देने पड़ेंगे, आपके स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे, दोनों बिहाइंड द बार हो सकते हैं। इसलिए प्लीज कॉपीराइट जब तक बचे हुए हैं, जिस दिन पकड़े गए तो उस दिन आपको ये लाखों डॉलर देने पड़ेंगे, रुपीस नहीं डॉलर। इसलिए अपना खुद की दिमाग से लिखिए और अपनी खुद के अच्छे से पब्लिकेशन कीजिए, कॉपीराइट कीजिए। पर्पस क्या है इसका? टू गिव द क्रिएटर कंट्रोल एंड अ मोनोपोली ऑन द रॉयल्टी फॉर अ पीरियड ऑफ द टाइम प्रमोटेड क्रिएटिवली। किताब जब आप लिखते हो तो किताब लिखने का एक फायदा है, पेटेंट तो 20 साल के लिए मिलता है, किताब जो लिखते हो, किताब 90 साल तक के लिए, 90 या पता नहीं और उससे ज्यादा भी है, 99 ईयर का भी ये मिलता है। तो आपके बाद आपके बच्चों को उसका फायदा मिल सकता है अगर आप किताब लिखते हो, कॉपीराइट करते हो, ठीक है ना। अगर आपकी कॉपियां चल गई तो आपके बच्चे भी उसका फायदा उठाएंगे। अगर आपकी कॉपी, वो बुक आपकी फेमस हो गई तो आपके बच्चे क्या आगे तक आपको चलता चला जाएगा फायदा। ये इसका एक्ट है, लॉ है, ये कॉपीराइट लॉ है।
ये अच्छा, ये व्हाट इज द प्रोटेक्टेड कॉपीराइट में लिटरेटिव वर्क मैंने बताया था, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, पैंटोमिक्स, पिक्चोरियल, ग्राफिक एंड स्कल्पचर वर्क, इमोशन पिक्चर, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्किटेक्ट, सारा का सारा कॉपीराइट करा सकते हैं। ये तो बहुत निकलता है कॉलेज के अंदर। ये सारी बातें अपनी कॉपीराइट करवा के छपाते चले जाइए, आपको नंबर मिलते चले जाएंगे, आपका कॉलेज ए ग्रेड की तरफ, A++ की तरफ बढ़ता चला जाएगा। पिक्चरों का ध्यान रखिए, आजकल सबका स्मार्टफोन है, किसी की पिक्चर मत चोरी कीजिए कभी भी। इंसर्ट योर फेवरेट फोटो बाय योर ओन क्लिकिंग। आइडिया भी उसमें अपना होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी अपनी होनी चाहिए, डिस्कवरी अपनी होनी चाहिए, उसका टाइटल, नेम, शॉर्ट फ्रेजेस, ये उस पिक्चर का, जो भी पिक्चर खींचते हो उसका नाम वाम लिख के फिर उसको कॉपीराइट करवाइए, तब वो पिक्चर आपकी हो जाती है और राइट मिलते हैं आपको, यू कैन मेक द कॉपी ऑफ दैट। ये मैं आपको किताब दिखाना चाहता हूं जो अभी अभी पकड़ी गई। इस आदमी ने क्या किया, ये 2 फोटो और ये पीछे वाली फोटो कहीं से उठा के, ये यहां से उठा ली, देखिए उसने यहां से 2 अलग अलग फोटो में उठाई और 2 अलग अलग फोटो में उठा के ये उसका मैगजीन का टॉप बना दिया, और फिर उनसे परमिशन ली नहीं, तो लाखों डॉलर रुपए इसको देने पड़े। इसके ऊपर केस चला, केस के बाद ये हार गए कि हमने पिक्चरें चोरी की थी। तो भैया क्या जरूरत है आपको चोरी करने की, आप खुद खींचिए फोटो और खुद खींच के अपना लगा लीजिए जहां लगानी है आपको। ये देखिए, ये कार्टून भी नहीं बना सकते, ओरिजिनल पिक्चर के आपने कार्टून बना दिए हैं वही, इसमें इंफ्रिंजमेंट आ जाएगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो उनका लिया है ना, तो फिर आप पकड़े जाओगे। आप नई चीजें करिए, इसमें नई फीलिंग डालिए उसमें, तब आपको वो पिक्चर आपकी अपनी हो जाएगी, आपको कम यूज कर सकते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इन्फ्रिंज करता है? द कंपनी दैट डायरेक्टली इन्फ्रिंज करती है वो भी जेल में जा सकती है। एम्प्लॉय हु पार्टिसिपेटेड इन इन्फ्रिंजमेंट और शुड हैव द सुपरवाइजर, वो भी अंदर जा सकते हैं। मतलब सुपरवाइजर भी जा सकता है, पीएचडी थीसिस में अगर फोटो किसी की लगाई है आप भी चले जाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको ये काम नहीं करना, अपनी खुद की फोटोग्राफ लगाइए। कैसे करना है, अगर आपको फोटो लेनी भी पड़ जाए ना, तो आप उस फोटोग्राफर से जिसने वो फोटो खींची है एक लाइसेंस ले लीजिए कि सर मैं अपनी पीएचडी में या अपनी किताब में आपकी फोटो लेना चाहता हूं, कृपया मुझे थोड़े दिन के लिए लाइसेंस दे दीजिए। वो आपको हाँ कह देगा तो आप उनकी इमेज का यूज कर सकते हो, नहीं कहता है तो आप फोटो खींच लीजिएगा। तो ये करना काम जरूरी है, लेकिन ठीक है। तो आगे आपको बताना चाहता हूं विपो और निपो के बारे में, जो कि ट्रेड वाली चीजें हैंडल करती हैं। ये फोरम है, फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। ये पूरे वर्ल्ड का देखती है, ये पॉलिसी फोरम है, ग्लोबल सर्विस है इसकी, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, कोऑपरेटिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग इसका काम है, और वर्ल्ड रेफरेंस सोर्स फॉर आईटी इंफॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड का एक रेफरेंस सोर्स है। तो इसको आप जाके वेबसाइट पे सारे पढ़ लीजिए, आपके अधिकांश क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। और एक है निपो, इसका काम है, सॉरी विपो का काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट ऑल्सो। जो भी डिस्प्यूट होती है, तो वर्ल्ड की डिस्प्यूट होती है, मीडिएशन करती है, थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ द पार्टीज, आर्बिट्रेशन और द कॉन्सिलेशन, ये सारा काम विपो करवाती है। अब आता है निपो। निपो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, aids, assist and facility owner of the intellectual property and ensure ties of the mutual friendship and understanding। ये पूरा काम अपने नेशन में होता है, कई कई अपनी विपो की एजेंसीज बनी हुई हैं, आप वहां जाके उनसे इंफॉर्मेशन लेके फायदा ले सकते हैं। फाइनली अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स भी एमएससी करके, लॉ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर। की एप्टीट्यूड फॉर पेटेंट अटॉर्नी, जो अगर आप अटॉर्नी बनना चाहते हो, अगर आप एमएससी कर ली, आपने एमएससी कर ली साइंस के अंदर, पीएचडी कर ली साइंस के अंदर, फिर आप एक लॉ कर लीजिए, लॉ करके आप पेटेंट अटॉर्नी बन सकते हो। क्या कर सकते हो, इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक अपन होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, एक होते हैं पेसिमिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक आधा गिलास पानी दिया किसी के, मैंने 1 घंटा लेक्चर लिया, उसके बाद आधा गिलास पानी पकड़ा दिया किसी ने, मैंने उसको बोला है भगवान थैंक यू यार, इतना मेरा गला सूख रहा था, आधा गिलास पानी, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन मैं बोलूंगा दूसरी तरफ, अगर मैं पेसिमिस्टिक हूं, इतना मैंने बोला और मेरे को आधा गिलास पानी दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये मैं पेसिमिस्टिक हो गया। तो ना हमें ऑप्टिमिस्टिक होना है, ना हमें पेसिमिस्टिक होना है, हमें सिर्फ पेटेंट अटॉर्नी कैसे बनना है ये बताना है कि ये पानी का ग्लास है, लिक्विड H2O है, बाइसेक्ट इन एन ओपन सिलेंड्रिकल कॉलम which is closed from the bottom having half of the water, that's all। जो आदमी इस चीज को सोच लेगा, इस विज्ञान को सोच लेगा, वो पेटेंट अटॉर्नी बन सकता है। फ्लुएंट इन टेक्निकल लिटरेचर होना चाहिए उसको, प्लेइंग विद वर्ल्ड होना चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए उसकी अच्छी, डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, गुड विद द पीपल, डू इट इज अ सर्विस टू द इंडस्ट्री।
अंडरस्टैंड द बिजनेस। जो ये आदमी काम करेगा वो बिजनेस समझना शुरू कर देगा। लिटिगेटर्स शुड एंजॉय द आर्गुमेंट, पब्लिक स्पीकिंग उसको अच्छी लगेगी। अगर ये सारे काम बच्चे के अंदर, आपके किसी के अंदर क्वालिटी है, तो डेफिनेटली उसको आप पेटेंट अटॉर्नी के कैरियर की तरफ मूव कर सकते हो। ये भी देखा जाता है नेक में कि आपने काम करवाते कराते किसी को जॉब भी दिलवा दिया, पेटेंट करवाने के बाद वो अटॉर्नी बन गया है, तो ये भी आपके एक क्राइटेरिया में जुड़ता है और आपको नंबर प्राप्त होते हैं। इट इज हाउ पेटेंट अटॉर्नी कुड बी द इंडियन लॉ और प्रैक्टिस में सबसे पहले यही बात है, रिसर्च करो और रिसर्च करने के बाद ये सारी स्टेप्स मैंने बताए और फाइल अ पेटेंट। जिस वक्त आप फाइल कर दोगे उसके बाद पेटेंट ऑफिस कलकत्ता में है और मुंबई में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, यहां से आपकी लेटर एलोकेट हो जाती है और उसके बाद कंट्रोलर जनरल के पास जाती है, ज्वाइंट कंट्रोलर के पास जाती है, फिर एग्जामिनर के पास चली जाती है, डिप्टी कंट्रोलर के बाद भी एग्जामिनर के पास जाती है या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर के पास जाती है और फिर एग्जामिनेशन होने के बाद ये चीज आपकी छप जाती है और छपने के बाद आपके कॉलेज को रॉयल्टी मिलती है। अंत में मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी 2 मिनट की बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से मुझे आज पेटेंट्स करने की मोटिवेशन मिली है। वो ये स्टोरी है कि एक बार मैं पीपल्स ग्रुप में गया और मुझे वहां पे डायरेक्टर जनरल बनाया गया और मुझे कहा गया एक यूनिवर्सिटी बनानी है आपको। तो मैंने यूनिवर्सिटी वहां बनाई और एक सेंटर बनाया, CSRD, 2 चीजें बनाई मैंने। और जब बन गया तो बोला कि भाई इसका उद्घाटन कौन करेगा? मैंने बोला राष्ट्रपति जी करेंगे। राष्ट्रपति जी करेंगे। जब मैंने बोला तो लोग हंसने लगे, बोलते प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी राष्ट्रपति जी आते हैं। मैंने कहा लेट मी ट्राई। जब मैं लिखूं तो दुनिया पढ़े, जब मैं बोलूं तो दुनिया सुने। हे सरस्वती माँ, मुझे 2 वर दे देना, जब मैं लिखूं तो दुनिया पढ़े, जब मैं बोलूं तो दुनिया सुने। ये बस प्रेयर है मेरी बाबा जी से, सरस्वती माँ से। वही बात हुई जब मैंने एक चिट्ठी लिखी तो मैडम कहती है, राष्ट्रपति मैडम, यस आई एम कमिंग टू इनॉग्रेट योर सेंटर। ये होती है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद वो मैडम आती हैं। आने के बाद मुझे सिर्फ 20 सेकंड मिलते थे, 20 सेकंड में, लेकिन मैंने बोला 20 सेकंड में मैं क्या बात करूंगा। लेकिन मैडम ने अपने आप ही मुझसे पूछ लिया कि नहीं बताइए आपने क्या क्या किया है। तो मैंने 20 मिनट तक उनसे बातचीत करी। देखिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये बलराम जाखड़ जी खड़े हैं, आपके हरियाणा के हुआ करते थे, राजस्थान के। ये शिवराज जी खड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री। ये इनके हस्बैंड है मैडम के। और ये वो बंदा है जो मुझे बार बार रोक रहा है कि ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल। और मैं 20 मिनट तक मैडम को समझाता हूँ कि मैडम मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। और मैडम ने खुश होकर बोला कि मैं अगले साल फिर आऊंगी और देखूंगी कि आपने क्या किया। मैंने अगले साल तक 4 पेटेंट फाइल करवाए और बहुत लोगों को मैंने मोटिवेट करके वहां बड़ा शानदार पीपल्स यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये सारा फायदा हुआ। मेरी इस बायोटेक्नोलॉजी मुझे बहुत आगे तक लेके गई और मैं थैंक्स करता हूं उस परमात्मा का जिसने मुझे शक्ति दी कि मैं साइंस को लोगों के हिसाब से समझकर पेटेंट्स फाइल करवा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग मी। आई होप पूरा 1.25 घंटे में मैंने अपना लेक्चर खत्म कर दिया है। सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much. It was really wonderful lecture. Am I audible, sir? Yes, please. So in the last थोड़ा सा हमारे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी अभी जस्ट आपने जब ये लास्ट वाली कुछ बातें बोली तो बट वी आर एबल टू रीगेन द कनेक्शन. Okay, I'm sorry. I'm sorry. It was on our side, sir. Perfectly fine from your side, sir. So thank you very much, sir, for this thought-provoking and wonderful lecture about intellectual property rights. There are so many aspects जो बहुत सारी बातें हैं जो हमें कभी पता नहीं होती. जैसे ये रिन्यूअल फी की जैसे बात हुई है तो आई एम सरप्राइज कि ये कोका कोला एंड इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये भी अपने ट्रेडमार्क की रिन्यूअल फीस भरती होंगी हर टाइम. It is not permanent. All over world this practice is going on. All over world this practice is going on. Okay. So it is to be renewed. जैसे हम अपना license. It is to be renewed. Otherwise वो कोई और ले लेगा. Somebody else will take it out. It is a type of a license. हाँ जी. Granted for a particular time period. Right. So thank you very much. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको जरूर इन बातों ने एनकरेज किया होगा कि they can also do a lot अगर वो इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें. हमारी आज ये शुरुआत हुई है सर IPR के बारे में कुछ हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. We will add some more dimensions to it and will include more people. अभी हमने सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट तक रखा था इसको. So we will make it to a bigger level probably. And thank you very much, sir, for being with us today
And for formal vote of thanks, I would like to invite Madam Dr. Arpana Garg. A very good afternoon to one and all present here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make this event a grand success. On behalf of the entire organizing team, I, Arpana Garg, first of all express my sincere thanks to Almighty God. By His blessings and grace, we are able to make the event what it was. I would like to express my sincere thanks to our today's speaker, Professor S.S. Sandhuji, for providing encouragement about intellectual property rights. I'm also very grateful to Sir for his analysis of patents, trademarks, and copyright. Also, I would like to thank our worthy principal, Sir, Dr. Ajay Kumar Garg, who gave us this opportunity to organize this event. Support and motivation of our principal, Sir, always keeps us focused and determined. Thanks a lot, Sir, for your overwhelming support. With deep sense of appreciation, I would like to thank Dr. Rajna Sharma, Dr. Muhammad Ishaq, Sir, for their guidance and cooperation to organize this program. The entire Faculty of Science has always been very supportive and collaborative. All the colleagues who are present with us here, as well as through online mode, we are thankful to them also. Last but not the least, I would like to thank all the participating students present here for their enthusiastic response, without whom this event was meaningless. Thanks to one and all. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Arpana. So with this, I seek your permission to dispose of, sir. Should we now end this meeting? Hello. Am I audible, sir? Hello. Am I audible? Students, Kanchan, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. So with this message to all of you, देखो आपने अभी बहुत important aspect सुने हैं intellectual property rights पे, कि आप लोग भी कुछ इनोवेट करके उसका पेटेंट करवा सकते हैं और बहुत समय है आपके पास, अभी आपके कैरियर की शुरुआत है. So you seek the guidance from your teachers and read the laws and clause. जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉज एंड डिफरेंट कॉलम्स हैं, जो बाई लॉज हैं, लॉज हैं, वो पढ़ें और अपने टीचर्स की मदद के साथ आप लोग भी जरूर करें कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम. तो इंडस्ट्री है जैसे हमारे यहाँ लोकल, उसके साथ आप अपना तालमेल बना सकते हैं थ्रू दिस कॉलेज, एंड द कॉलेज विल ऑलवेज हेल्प यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. आगे कोई भी प्रोग्राम होगा, we will inform you about any of the future programs. Thanks a lot.